good morning बच्चों. Today I am going to start the motion in one dimension part 2. In this topic we will discuss about the some graphical representation and relation between the time and displacement and time and velocity graph and time acceleration graph, etc. and the equation of motion, derivation of equation of motion by the graphical method. And now we will start motion in a straight line or motion in one dimension. Motion in one dimension. So the time taken on the x axis and the displacement taken on y axis. This is the distance, time distance graph. So if this graph like this, it means by increasing the time the distance not change, so body is called in rest. So this is the position of rest. And in this graph, when the time taken on x axis and the distance taken on y axis, it means the slope of this graph give the value of speed. So the slope remains same during the motion. So this is the uniform motion, uniform speed. This is stated that uniform speed. And if this angle is theta, then you say that speed is equal to tan theta and distance upon time. This is the speed uniform. And in this graph, if the time taken on x axis and distance taken on y axis, it means the angle increases, therefore the speed increasing speed. Non-uniform, increasing speed. And the distance taken on y axis and time taken on x axis, it means distance decreasing speed decreasing. Time distance graph, this graph is actually not possible because the distance not decrease, not possible. This graph is not possible, distance with respect to time not decrease and never come to the zero. So this graph is not possible and this graph is not possible. Time distance, this graph is not possible. This graph is not possible. So whenever we compare the two motions, let us suppose the time and the distance, these two graphs, this angle is smaller and this angle is greater, therefore the speed of the body B is greater than speed of the body A. This graph is not possible. Why? Because the distance not decrease with the time. So distance time graph में this graph is not possible. And next, the displacement time graph. The displacement time graph, if the time taken on x axis and the displacement is a vector quantity taken arrow on its head, so displacement this graph rest, the time displacement graph, uniform velocity, slope gives the value of velocity, therefore uniform velocity
and if in the graph there are the two things are two bodies motion, so the velocity of B is greater than velocity of A because the angle is smaller and this angle is greater. So velocity of B is greater than velocity of A. If in this graph the time and the velocity time displacement is given, so if the time 1 second and after some time the time become 2 seconds and the displacement, initial displacement 10, final displacement 20, so you can estimate the velocity of the body is change in displacement x2 minus x1 upon t2 minus t1. Therefore the final displacement is 20, initial is 10, final time is 2, initial time is 1, therefore 10 by 1 meter per second. This is the velocity of the body. If the time given in second and displacement given in meter, then the velocity can be estimated. So the time velocity graph, and similarly the time this graph is not possible with respect to the time, the displacement like this, it is not possible. And similarly whenever this is the time and that this is the displacement like this, so at the same time there is no two displacements are possible. At the same time the two displacements are not possible. So not possible, this graph is not possible. The time at the same time there is no displacements are possible. So these graphs are not possible. Okay, तो बच्चों देखा टाइम डिस्टेंस और टाइम, यहाँ वाला ग्राफ देखो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस जो है वो कभी कम नहीं होती और ज़ीरो नहीं होती, यानी डिस्टेंस बढ़ती रहती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ये पॉसिबल है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ये पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देर बाद ज़ीरो हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि लखनऊ से कानपुर गए और कानपुर से लखनऊ वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ज़ीरो हो सकता है टाइम के बाद थोड़ी देर बाद, लेकिन डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होती। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों टाइम वेलोसिटी ग्राफ देखते हैं। टाइम वेलोसिटी ग्राफ में ये है कि टाइम तो हम लोग एक्स एक्सिस पे लिए हैं, टाइम एक्स एक्सिस पर है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है। तो अगर इस तरह का ग्राफ है तो देखो एक्सेलरेशन इसमें स्लो बताता है, तो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इस ग्राफ में देखो बच्चों कि टाइम है और वेलोसिटी है। टाइम वेलोसिटी ग्राफ अगर इस तरह का है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, यानी स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अब देखो बच्चों अगर ऐसा ग्राफ है तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है ऐसे, तो इसका मतलब स्लोप कभी यहाँ पे कम है फिर और ज़्यादा फिर और ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। और देखो बच्चों अगर इस तरह का ग्राफ है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घटती जा रही, तो इसका मतलब रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसमें कहा जाता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी घटती जा रही है और बाद में ज़ीरो हो गई, तो रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और ये वाला अगर है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन जो है वो
डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन है जो घट रहा है, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, अगर ये ग्राफ है तो टाइम के साथ साथ ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी चेंज ही ना हो। टाइम तो लग रहा है वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही, टाइम तो हो नहीं रहा है चेंज और वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही, तो नॉट पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल नहीं है। और ये वाला देखो, टाइम और ये वेलोसिटी, तो अगर इस तरह का ग्राफ है तो एक पार्टिकुलर टाइम पर दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पर दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती कि वेलोसिटी कम भी हो और ज़्यादा भी हो, ये देखो ए और बी दोनों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि ये टाइम और एक्सेलरेशन ग्राफ प्लॉट करो, तो टाइम और एक्सेलरेशन ग्राफ अगर इस तरह का है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ के ऊपर टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता है। अब अगर कहें एरिया ऑफ टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, तो चेंज इन वेलोसिटी पता चलेगी, इससे हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी पता चलती है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पता चलती है। एरिया ऑफ टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, एरिया ऑफ टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, एरिया ऑफ टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ जो होता है हमको चेंज इन वेलोसिटी बताता है। अब देखो, अगर एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, अगर कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी जो है निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो एरिया कितना होगा इस ग्राफ का? अगर देखा जाए तो एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो 4 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 8 आया, एरिया कितना आया 8। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू एरिया 8। अब फाइनल वेलोसिटी पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस एरिया टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, टाइम वेलोसिटी ग्राफ जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसी पर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इसी से बाकी चीज़ें भी निकाली जा सकती हैं। इसलिए टाइम वेलोसिटी ग्राफ जैसे दिया है, तो देखो टाइम वेलोसिटी ग्राफ से पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड दिया है, यहाँ टाइम 2 सेकेंड दिया है, यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दी है, और फिर 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अब आपसे कहा जा रहा है एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालना है। तो देखो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v2 माइनस v1 और अपॉन टाइम t2 माइनस t1। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पहली वाली वेलोसिटी 5 है, दूसरी वाली 10 है, तो v2 की जगह क्या लिखेंगे? बताओ v2 की जगह क्या लिखेंगे? v1 की जगह। तो बच्चों देखो, इन्होंने सही बताया कि इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है, तो 10 माइनस 5, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 5 लिखा, और पहले का टाइम क्या दिया है? हाँ 1, दूसरा 2, यस, तो 2 माइनस 1, इस तरह वेलोसिटी कितनी आ गई? 5 अपॉन 1, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से टाइम वेलोसिटी ग्राफ अगर दिया होता है तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है।
अब देखो टाइम वेलोसिटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट भी निकाला जाता है। टाइम वेलोसिटी ग्राफ का एरिया, टाइम वेलोसिटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो टाइम वेलोसिटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। जैसे इसी सवाल में अगर 1 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट बताओ, कह रहे हैं कि 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो टाइम यहाँ से इसका एरिया निकाल लिया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड अगर ये पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी एरिया निकाल लिया जाए। ये एरिया OAB, अगर इसका एरिया निकालना है OAB तो हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है बच्चों, बेस यहाँ से यहाँ तक 1 है और हाइट कितनी है वो 5 है। तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 2.5 मीटर आ गया। और अगर कहते 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, तो फिर 2 सेकेंड में निकालने के लिए उसका एरिया निकालते। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में अगर निकालना है तो एरिया ऑफ OLM, एरिया ऑफ OLM, तो OLM का एरिया निकालेंगे। तो जब OLM का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस, बेस यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 2, यस, तो 2 हो जाएगा। और हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक हाइट कितनी दी है, यस 10, तो 10 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 10 मीटर, तो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। तो इस तरह से टाइम वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन बताता है और टाइम वेलोसिटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब अगर यहाँ टाइम स्पीड ग्राफ होता तो एरिया डिस्टेंस बताता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं कि जिसमें टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे और डिस्टेंस भी निकालेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, जैसे कि इस तरह से टाइम, ये वेलोसिटी ग्राफ है, पहले ऐसे है फिर ऐसे है और फिर ऐसे है। यहाँ पर 0 लिखा है और 1 सेकेंड पे वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो गई, 3 सेकेंड पर वेलोसिटी इस तरफ है -5 मीटर पर सेकेंड, -5, और उसके बाद 4 सेकेंड पर बॉडी फिर डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0 हो गई, 4 सेकेंड पर वेलोसिटी फिर 0 हो गई। तो अब अगर हम आपसे कहें कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, तो इसका और इसका एरिया निकाल लो। अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो OAB का एरिया निकालिए और BCD का एरिया निकालिए और दोनों एरिया को ऐड कर दीजिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड अगर निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, तो अब देखो पहले एरिया ऑफ एरिया निकालें OAB का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, एरिया ऑफ BCD, तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक 5, तो देखो ये, और फिर BCD का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का नाम BCD का हाफ बेस, बेस बच्चों कितना है यहाँ से यहाँ तक 2 और 4 का डिफरेंस यानी 2, और हाइट कितनी है -5, तो देखो -5 लिख दिया। इस तरह से अगर देखें तो 5 प्लस में आ रहा है, 5 माइनस में आ रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में एरिया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन अगर टोटल डिस्टेंस कही जाए इसी ग्राफ से, तो जो डिस्टेंस होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो टोटल डिस्टेंस 5 + 5 यानी टोटल डिस्टेंस 10 मीटर आएगी। तो इसी ग्राफ से टोटल डिस्टेंस अगर पूछी जाए 4 सेकेंड में, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 10 आएगी और टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो ऐसा समझ गए बच्चों, अगर टाइम वेलोसिटी ग्राफ दिया है तो उसका एरिया
क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। टाइम वेलोसिटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है, और अगर साइन पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान ना लिया जाए तो डिस्टेंस निकाल आएगी। तो 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। ठीक है, ठीक है ना। अब बेटा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले ग्राफिकल इक्वेशन तीनों ड्राइव किए दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, और इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। टाइम, इसमें जो है टाइम वेलोसिटी ग्राफ देखिए बेटा, इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो पहले लिया टाइम को एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी u है, और जब t बराबर 0 है तो वेलोसिटी u है, और फिर t सेकेंड बाद वेलोसिटी v हो गई, बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पर v हो गई। तो देखो अगर हम इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें तो देखो ए बी सी, यहाँ ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है। ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम आपसे कहें बी सी कितना है, तो आप कहेंगे बी सी जो है वो यहाँ से यहाँ तक v, यहाँ से यहाँ तक u। देखो ये u दिया है और ये यहाँ से यहाँ तक v दिया है, तो बी सी की वैल्यू कितनी है? v माइनस यू। और कहें टाइम ये ए बी कितना है, तो ए बी की वैल्यू है t माइनस 0। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है t माइनस 0 यानी t। अब आपसे कहा जाए कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो आप कहेंगे कि सर एक्सेलरेशन बताता है। तो ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपान टी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी इज t, फाइनल वेलोसिटी इज v, और एक्सेलरेशन इज t। तो देखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव हुई? टाइम को x एक्सिस पे लिया, वेलोसिटी को y एक्सिस पर। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। टाइम t लिया, t सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो अब ये अगर एक्सेलरेशन देखा है तो स्लोप यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है स्लोप है tan थीटा, और इसकी वैल्यू होती है चेंज इन वेलोसिटी यानी बी सी परपेंडिकुलर अपान बेस ए बी। तो तुमने देखा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक v है और ये u कम हो गया तो ये v माइनस यू, और यहाँ t माइनस 0। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू और ए टी, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इसमें एक देखें क्वेश्चन, ये इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी की 5 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी पूछ रहे हैं। वेलोसिटी पूछ रहे हैं कि 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी बताओ, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। कैसे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन 5, एक्सेलरेशन इज गिवन 2, और टाइम इज 10। Therefore 5 plus 20 and your answer is 25 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 25 मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर u प्लस ए टी से अब देखो 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, और 4 वेरिएबल में अगर 3 गिवन है तो चौथा निकाला जा सकता है। जैसे इस सवाल में 3 वेरिएबल गिवन थे, t और u और a दिया था, तो v निकाला जा सकता है। इसी तरह अगर आपसे t पूछा जा सकता है, v u a दे के t पूछ लेंगे, तो इन 4 वेरिएबल्स में से 3 दे के चौथा वेरिएबल इस इक्वेशन की मदद से निकाला जा सकता है। अब देखो बच्चों टाइम वेलोसिटी ग्राफ हो गया, इससे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की। इसी से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? हमने बताया था कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ का एरिया, टाइम वेलोसिटी ग्राफ का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ग्राफ, जो टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ ग्राफ, वीटी ग्राफ जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ये हमको बताता है। तो देखो बच्चों यहाँ एरिया कितना है, अगर देखें ओ ए ओ एल एम ए, तो एरिया क्या बन रहा है? ओ
एल बी ए, एक ये बन रहा है रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया देखो तो ओ एल बी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ बच्चों यहाँ से यहाँ तक है टी, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक यू है, तो देखो ये एरिया निकल आया। उसके बाद ए बी सी का एरिया निकालना है, तो हाफ बेस, बेस बच्चों कितना है, यहाँ से यहाँ तक टी है, तो देखो टी ले लिया, और ये कितना है परपेंडिकुलर, ये है v माइनस यू, कितना है v माइनस यू। अब आप देखो कि यू टी आ गया प्लस हाफ टी हो गया, और v की वैल्यू आप रख दीजिए u प्लस ए टी, जो हम ड्राइव कर चुके हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ये भी ड्राइव किया है, तो यहाँ से u रख दो और प्लस ए टी रख दो, और ये माइनस u रख दिया, तो इस तरह से ये u कैंसिल हो गया, तो यू टी प्लस हाफ ए और t का t से मल्टीप्लिकेशन टी स्क्वायर, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई और फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो लास्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कैसे ड्राइव होती है। थर्ड इक्वेशन जो है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इधर आओ देखो जल्दी से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो पहली इक्वेशन से हमने ये निकाला, और देखो v प्लस यू अपान टू, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपान टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपान टू, और ये टोटल डिस्टेंस अपान टाइम के बराबर होता है। यहां से देखा जाए तो v प्लस यू की वैल्यू आई 2s अपान टी, तो v प्लस यू पता है, v माइनस यू पता है, v प्लस यू कितना दिया है 2s अपान टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो v माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई v प्लस यू इज इक्वल टू ए टी इंटू 2s अपान टी, तो टी कैंसिल हो गया, और इस तरह से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो बच्चों ये तुम्हारा सिलेबस है क्लास 9th में, इक्वेशन ऑफ मोशन ए बी सी, 3 सेक्शन है आईसीएसई में, और यहाँ के ऊपर टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, और ये 3 इक्वेशन मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तीनों इक्वेशन आपको इसका डेरिवेशन ग्राफिकली आना चाहिए। 2 इक्वेशन ड्राइव की, तीसरी इक्वेशन पहली और दूसरी से निकाल ली, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो इन 3 इक्वेशन से हम लोग जो है सवाल लगाएंगे। अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम आप लोग को इसके न्यूमेरिकल्स कराते हैं। थैंक यू बच्चों।